हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और मैं हूं के मुकेश सिंह। और आज का ये जो इंटरव्यू सेशन है, इसमें ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। आपको उसका आंसर करना है और साथ में आप इसको ज़्यादा अगर फ्रूटफुल बनाना चाहते हो तो आप स्लाइड को पॉज करके पहले अपना आंसर देना और उसके बाद मेरा आंसर सुनना। So let us begin. But before going to start the actual session, I would like to say something to you. Because this is the question answer session for your interview examination. So whenever slide comes in front of you, so first pause the video and try to answer them within a minute, and after that listen my answer. When you are answering the question, also leave some points or words that gain the attention of the boards to ask the question from that point. So in that way you should trap the whole board in your basket. One more thing, as you know, syllabus of zoology is one of the lengthiest syllabus, and therefore I will provide you at least 5 to 6 sessions on zoology. In that, because this is the first session, so in that I am going to ask random questions from whole of the syllabus, and even sometimes the questions are not from your syllabus. But in the rest of the session, definitely I will ask questions topic wise, like the invertebrate or from the vertebrate, one video, another from the ecology, ethology, biostats, instrumentation, third one on cytogenetics and biochemistry, fourth one on evolution, biochemistry and human physiology, and the sixth one is on fifth one is on embryology, as well as on the zoology and associated current affairs. So in that way I will give you the exposure on question and answer, and I make sure you, if you continue all the 5 or 6 sessions, it will definitely play a key role in your interview in terms of answering the board questions and gaining good marks. So if possible, together you also arrange some session with your colleagues, friends, those who are already gotten the result, and if not, then come with us. And last thing is to get the early notification about the next video. You all at least subscribe this channel, and my team also working on GS, so very soon 10 to 12 video we are going to upload on the GS part also, and for your wholesome guidelines. So also at least if possible watch that video. Okay, so now let us start the session. One more thing, and the last thing is, I'm not going to define the syllabus and detailing the syllabus. Rather, I'm going to asking the questions. So first of all, you should pause it and answer my question. If not, then listen my answer. Okay, so let's begin. The first question is, which cell organelles is most important for a cell? If the board asks this question to you, then what will be your answer? Sometime इसमें स्टूडेंट क्या सोचता होगा कि भाई वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर बॉटनी का स्टूडेंट होगा तो हो सकता है वो भी सोचे क्लोरोप्लास्ट हैं। पॉसिबल है कि आप न्यूक्लियस भी सोच सकते हो। तो बेस्ट आंसर होगा कि सिंपली से कि सर न्यूक्लियस। देन डेफिनेटली बोर्ड पूछेगा क्यों, वाई। अब बोर्ड अगर पूछता है कि वाई, तो तुम आंसर जो भी दोगे आप उस आंसर में जो आप कुछ पॉइंट छोड़ो, जैसे लाइक कि सर न्यूक्लियस, एंड बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइक द DNA, RNA, क्रोमोजोम, and DNA is basically a genetic house of the characters, and there is gene also in DNA, and gene determines the character, while chromosome itself as a vehicle of transmission of characters. So that's why nucleus is the most important
ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स 1. दिस इज द वन आंसर. सपोज कि यह आंसर जिन लोगों को नहीं पता हो, अगर आपने अचानक से कह दिया सर एज आई नो द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल्स, देन अगेन दे आस्क व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन और कंट्रोलिंग हेड ऑफ द सेल्स, देन अगेन योर आंसर विल बी दैट व्हाट आई टोल्ड यू. ठीक है, आप इसको ऐसे आंसर करोगे. मैं अभी भी एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग बटन को पाउज कर लेना क्वेश्चंस पढ़ने के बाद और खुद आंसर करो. आंसर नहीं दे पाओ फिर मेरा आंसर सुनना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं. अब यहाँ दिस इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड आस्क्ड यू ओनली अबाउट, चूँकि सेल पे बात हुआ है तो डेफिनेटली द क्वेश्चन कम्स इन देयर माइंड व्हाट इज स्टेम सेल. अब मान लो अभी तुम्हारे पास रेस्ट जो 4 क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है वो नहीं है, सिर्फ दे आस्क्ड अबाउट व्हाट इज स्टेम सेल. तो स्टेम सेल्स का जो आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा दैट आर द आंसर. You can say कि sir stem cell is basically a kind of cells has immense power of divisions, or it is basically a undivided, undifferentiated or blank cells, and it has the such a potential so that enables them to give rise whole organism or any cell any organs or okay. So in that way you should answer it. लेकिन जब आप आंसर करते हो तो अगेन हो सकता है बोर्ड पूछे व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. दे नॉट गोइंग टू आस्क, मे दे आस्क, नो वन नो व्हाट दे आस्क. पर अगर पूछता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्टेम सेल तो मतलब टाइप्स नहीं पूछेगा. हाँ, ये पूछ सकता है कि व्हाट इज प्लूरिपोटेंट और ओलिगोपोटेंट और टोटीपोटेंट और मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट. अगर ऐसा पूछता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो. जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है. तो क्वेश्चन क्या होगा, इसके यूज पे होगा या तो इश्यूज पे होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. तो यूर आंसर, अब यहाँ पे आंसर आप अपने हिसाब से दो आंसर जो भी आपको आता है. अब अगर नहीं आता है तो आप ये कह सकते हो सर इशू इज जस्ट कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्लक आउट सम ऑफ द सेल्स फ्रॉम द 14 days embryo, so in that condition okay the and left after plucking out the embryonic cells and whatever the cell mass be left, so that cell mass if grown up, जब वो सेल मास आगे जाकर के किसी चाइल्ड का आकार लेगा तो मे द चाइल्ड मिस सम कैरेक्टर्स. तो अगर वो चाइल्ड मिस कर सकता है कैरेक्टर्स को तो दिस इज द आंसर. एंड दैट्स वाई जितने भी रिलीजियस हेड हैं या पीपल्स हैं शुड दे बिलीव दैट दिस इज अनइथिकल टू प्लक आउट द सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेल मास. तो दिस इज द इशू है. अब है कि जो साइंटिस्ट था वहाँ पे हो सकता है सवाल पूछे कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट. तो तुम अपना ओपिनियन जब दोगे तुम लोग ये कहो वहाँ पे आंसर सर माई ओपिनियन इज दिस इज नॉट द एक्चुअल इशू एंड इसमें इशू क्रिएट करने की जैसा कोई बात नहीं है. द रीज़न इज when we are plucking out the cells and about the fate of the remaining cell mass, so because the fate of embryo is not determined in the early embryonic stage, so no one can say what wrong going with the rest of the cell mass. One second thing is यहाँ पे एक इसका इशू ये भी है कि अगर स्टेम सेल जो एम्ब्रियो से लेते हो आप तो काइंड ऑफ ये जो भ्रूण हत्या है तो आप ये कह सकते हो कि चूँकि हमने किसी सेल मास को देखा ही नहीं है अभी, ठीक है, वो उसने अभी कोई आकार ही नहीं लिया हुआ है तो फिर हत्या तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का कोई केस नहीं बनता है. तो आप ऐसे इसका आंसर करो. देन मे दे आस्क अबाउट अगेन विच वन इज बेटर एडल्ट स्टेम सेल्स और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. तो आपका आंसर तो यही होगा कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. मे दे आस्क अबाउट वाई, हो सकता है आपसे पूछे कि वाई ऐसा क्यों होता है. तो आंसर अगेन विल बी बिकॉज इट इज़ least differentiated and least divided, and that's why in compared to adult stem cells it has more potentials to give rise any kinds of cells, and that's why preferably people's people's want to took embryonic stem cells as a
सो इन दैट वे यू शुड आंसर इट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इंड्यूस्ड स्टेम सेल थेरेपी। अब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े होगे प्रॉपर स्टेम सेल को तो आप इसका आंसर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वेश्चन है इसमें क्या जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है। वट एवर द यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, सो द सेल व्हेन लूजेस because they are not able to give rise many type of cells, so because of least potential of divisions and differentiation, so these cells are all almost differentiated, almost divided, तो इसका जो पोटेंशियल क्या हो गया काफ़ी कम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में ये जो सेल होगा यूनिपोटेंट सेल्स, तो बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन वी कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ मल्टीपोटेंट सेल्स एंड देन बी यूज दैट मल्टीपोटेंट सेल्स, मतलब यूनिपोटेंट को हम मल्टीपोटेंट में बदलेंगे और मल्टीपोटेंट को हमसे फिर से यूज करेंगे एंड टू ट्रीट सम डिजीज। सो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड स्टेम सेल थेरेपी। क्लियर है? सो यू कैन से सर बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिपोटेंट सेल्स इनटू मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड देन we use that cells for treatment of some disease, so this is called the induced stem cell therapy. So in that way you should answer it. Clear ना? मैं bilingual इसलिए हूँ because many peoples already made a request to me कि सर make the video in both the language and that's why तो थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम वाले हो वो भी अनकम्फर्ट हो रहे हो सकता है हिंदी वाले भी अनकम्फर्ट हो रहे हो। जस्ट लिसन प्रॉपरली इट, दिस इज द इंडिया एंड एवरीवन नो हिंदी एंड इंग्लिश, so I don't think there is any problem. Okay, so next is tell us 2 important characteristics of amoeba that enable them to reproduce. This is the most easiest question, but at first instance चूँकि आप लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे और बोर्ड आपसे काफ़ी हल्का क्वेश्चन पूछता है और उम्मीद करता है कि आप उसको आंसर करोगे। So tell us 2 important characteristics of amoeba that enable them to reproduce. अब इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? क्योंकि जिनको आंसर आ रहा है वो तो आंसर कर जाएंगे, पर यहाँ पे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है मुद्दा नहीं। यहाँ पे क्या है कि आप अपने माइंड को कूल रखो एंड बोर्ड वांट टू जज योर बेसिक्स। ये बेसिक का जजमेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन का जो आवर था वहाँ पे दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, सो डेफिनेटली दे डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे डिप्रेस नहीं होना है, ये बोर्ड आपको जान से पैनिक बनाया है। लेकिन जब ये क्वेश्चन देते थे आपको खुश भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आंसर बहुत पेशेंटली करना होगा। तो योर आंसर इज सर अमीबा enables themselves to reproduce because of 1 unicellularity and second is the simple body structure, so that permit them to go for reproduction in most easiest manners. यूनिसेलुलर है, एक ही सेल तो है इसका ना, तो एक सेल तो डिवाइड करके 2 बनेगा, 2 अमीबा बन गया। और चूँकि बॉडी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होने के कारण जो रिप्रोडक्शन है जो डिवीजन है वो काफ़ी ईजी है। अगर ये जो इसका बॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स होता तो फिर तो ईजी नहीं रह जाता, ठीक है, जैसे लाइक इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे ऐसा वो ईजी नहीं रह जाएगा, पर यहाँ पे क्या होगा काफ़ी ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर यहाँ पे आप लोगों का एक माइंड टेस्ट है, अब कितना पेशेंटली रह पाते हो, और बेसिक है हालांकि, पर आप इसका आंसर कर पाओ तो करो। टेल अस अबाउट एलाइजा, व्हाट इज इट। अब मान लो आपसे पूछता है कि टेल अस अबाउट एलाइजा, तो एलाइजा एंड व्हाट इज इट, ये जब आंसर आता है तो आपका पहला दिमाग में कि भाई एलाइजा इज ए बेसिकली सर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो मैं दिस टू आप अगर इतना पे रुकते हो तो फिर वो हो सकता है आगे पूछे सर दिस टेस्ट इज परफॉर्म, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द बोर्ड साइड कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट विच डिजीज। योर आंसर इज सर देयर आर सो मेनी डिजीज लाइक द हेपेटाइटिस, एड्स। Then again they ask, can we use it for detection of thyroid disorders or pregnancy or food allergens? अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, जब बोर्ड कभी भी इस तरह का जो आपको यस और नो का आंसर दे तो आप हमेशा वहाँ पे यस कर दो। मेरा अपना व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस रहा है,
मैं भी कई दफ़ा जब बोर्ड में बैठता हूँ, वेन एवर आई आस्क द क्वेश्चन एंड आई ऑफर द चॉइस, देन मोस्ट ऑफ द आंसर इज, मैं कभी उनको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। टेंडेंसी यहाँ पे ये होता है, जब इस तरह का कोई बोर्ड सवाल करे, मीन्स द बोर्ड यू ओके, सो दे स्टार्ट्स कोऑपरेटिंग यू, वो अभी कोऑपरेट करना शुरू किया है। अगर आपने पहले आंसर सही से नहीं किया है तो और लास्ट कोऑपरेशन होगा यहाँ पे आपके लिए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से ये समझ लो कि साइन है कोऑपरेशन का, ठीक है, तो इसको याद रखना और इसका आंसर क्या करोगे, यस, ठीक है। चूँकि जो एलाइजा टेस्ट होता है ये सिर्फ HIV के लिए या हेपेटाइटिस के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये कई सारे डिजीज़ के लिए होता है, ठीक है। नहीं, कभी कभी TB में भी करते हैं लोग इसको, हम लोग इसमें थायराइड कालाजार में करते हैं लोग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये थायराइड में भी होगा, ये प्रेगनेंसी में भी होता है और ये फूड एलर्जीज में भी होता है। नेक्स्ट इज द व्हाट बी टेस्ट इन एलाइजा, व्हाट बी टेस्ट इन एलाइजा, W कर देना यहाँ पे। एलाइजा में हम टेस्ट किसी का करते हैं, तो आंसर इज सर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। सो वी आर टेस्टिंग द बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, तो ये आपको बोलना होगा, ठीक है। अब हो सकता है वो ना भी पूछे और हो सकता है वो पूछ भी ले, विच एंजाइम बी यूज टू डू द टेस्ट। अब ये क्वेश्चन वही पूछ सकता है जो जेन्युइनली जूलॉजी बैकग्राउंड से होगा, ठीक है। और जिनका बैकग्राउंड नहीं वो नहीं पूछेगा आपसे, तो आपका आंसर आपको यहाँ आना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो आप सॉरी बोल के स्किप कर जाओ, सॉरी सर। चूँकि अब यहाँ पे सॉरी बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही सॉरी बोलते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ब्लंडर है, ठीक है। सेकेंड थर्ड के साथ अगर आप डाउटफुल रहते हो तो भी ब्लंडर है। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इजली निकलना ही चाहिए, ठीक है। और रही बात फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का, तो जब टेस्ट का आंसर इसे सुन लो, इसका इस पर इंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं, पेरोक्सीडेज एंड अनदर इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो दीज इंजाइम्स वी आर यूजिंग इन दैट टेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट बायोएथिक्स। अब क्वेश्चन यही होगा पहला। अब मान लो इथिक्स आपको पता है और उसमें बायो ऐड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या करोगे सर, बेसिकली बायोएथिक्स इज अ रूल ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज्ड टू रेगुलेट्स आवर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो हो सकता है वो यहाँ पे पूछे हाउ कैन बी इट मिस यूजेज। अब इसको ठीक है ना, इसका मिसयूज क्या हो सकता है, तो फिर वहाँ पर आप आंसर कर सकते हो सर, यूज ऑफ एनिमल्स इन बायो टेक्नोलॉजी एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड द एनिमल्स सो मे कॉज देयर ग्रेट सफरिंग एंड वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग दैट सो वी शुड टेक ऑल दोज केयर्स, ओके। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड कि वाई GEAC वॉज एस्टैब्लिश टू लुक एंड रेगुलेट ऑल दिज अफेयर्स। योर आंसर इज ओवर, आंसर भी समाप्त करना है जल्दी से, ठीक है। चूँकि आपसे 14 से 15 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है कि आप आंसर दे रहे हैं तो इंटरव्यू आगे प्रोसीड कर सकता है, मैक्सिमम 18 मिनट 20 मिनट जाए। नहीं करते हो तो आपको हो सकता है 10 मिनट से पहले ही आपको रिलीज़ कर दे, ठीक है। तो कंटिन्यू ये करना है कि इंगेज होना है। और मान लो इस समय कोई एक्टिविटीज़ जो है, अगर आपको टाइम चाहिए 1-2 सेकंड का नहीं, आप आराम से 15 सेकंड से 30 सेकंड टाइम लो सोचने के लिए। और जब नहीं सोच पाओ तो उनसे बोर्ड से अगेन क्वेश्चन कर दो, सॉरी सर पार्डन प्लीज़ वंस रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। आप ऐसे इनको रिक्वेस्ट करके रिपीट कर सकते हो। और जब नहीं आए तो ऑनेस्टली आप स्किप कर जाओ, सॉरी सर, फिर आगे का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक द क्वेश्चन, व्हाट इज़ नियोटेनी। अब व्हाट इज़ नियोटेनी यू ऑल नो, जो जूलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, एम्फीबिया में आप लोग पढ़े होंगे नियोटेनी। अब यहाँ पे जब नियोटेनी पूछा तो नियोटेनी नहीं, दे डोंट वांट टू नो ओनली अबाउट द नियोटेनी, व्हाट इज़ नियोटेनी एंड व्हाट इज। जब आप इसका आंसर करते हो सर नियोटेनी इज बेसिकली द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स। क्या है ये नियोटेनी, यही है ना या कुछ और है। एंड व्हाट इज पीडोजेनेसिस। तो पहले आप लोग आंसर, तो नियोटेनी में क्या बोलोगे सर, नियोटेनी इज रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट बॉडी। वेल जब आप इतना ही करके रुक जाओगे तो मे दे आस्क यू व्हाट इज पीडोजेनेसिस, देन अगेन कंटिन्यू इट सर इट इज अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल फॉर्म।
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अब मान लो तुमने कहा, हो सकता है वो आज पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस, देन यू से सर न्यूटन इज बेसिकली रिटार्डेड ग्रोथ व्हाइल पीरियोजेनेसिस इज एक्सेलरेटेड ग्रोथ, इजंट इट? तो ये आंसर आप करके आप इसको बहुत इजीली इससे निकल सकते हो। तो क्वेश्चन से हमें बाहर भी निकलना होता है, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, रिपीट करोगे उसी को, सर न्यूटन इज कंटिन्यूएशन और रिटेंशन ऑफ लार्वा करेक्टर इन एडल्ट बॉडी व्हाइल पीरियोजेनेसिस इज अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द लार्वा फॉर्म। अगेन मे दे नॉट अंडरस्टैंड और मे दे नो बट दे वांट टू क्लैरिफाई फ्रॉम योर साइड कि व्हाट यू हैव अ डेप्थ इन दैट। सो फॉर दैट you need to answer in and change the paragraph in that way, sir Newton is a retarded growth and pyrrhogenesis is basically a accelerated growth. So now in that way your answer will be defined. Okay, take the next question. What is genome? अब क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि व्हाट इज जीनोम, तो हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन? यू ऑल नो जीनोम क्या होता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको पता है कि जीन क्या है, जीनोम क्या है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो आप ऐसे बोल सकते हो, सर हेप्लॉइड सेट ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। दिस इज द वन डेफिनेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। अगेन मे दे आस्क, डू यू हैव सम आइडिया अबाउट जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज इट? अब या ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो मान लो अगर यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, या उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है। अगर नहीं तो एटलीस्ट चूँकि करंट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और इसमें आप ये जब आंसर करोगे तो फिर यहाँ पे ये साइंस नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन होगा करंट से जोड़ करके। तो फॉर दैट यू नीड टू नो जस्ट टेल फ्यू वर्ड्स लाइक, सर दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली कंसर्न विथ जीन मैपिंग, ओके, एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड दैट्स व्हाट इज ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द HGP means human genome project, and it tried to explore the information about the kind and nature of disease in Indian population, and to create a database of genetic material information of people of India. And therefore more than 20 institutions along with Indian Institute of Science Bangalore started this project. Over it, need not to say any words more. इतना बहुत आंसर हो गया, जितना पूछता है उतना ही आंसर दो, ज़्यादा आंसर देना भी नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें जा कर के वो पूछता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं जाके पूछता है तो आप आंसर से बचोगे। या आप पूछ सकता है अल्टीमेट इसका बेनिफिट क्या होगा, तो अल्टीमेट इसका बेनिफिट क्या होगा, जस्ट वी वांट टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ और नेचर ऑफ डिजीज इन इंडियन पॉपुलेशन. So okay, for that we must have our early database in okay, so that later allow us to diagnose the disease and prepare a tailor-made medicine for the effective combating that disease. जैसे अभी कोरोना हो गया, कितना समस्या हो रहा है लोगों को, कोई वैक्सीन नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो ये एक बड़ा सा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्विंस. बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है. व्हाट इज ट्विंस यू ऑल नो, एंड ओनली थिंग इज हाउ यू कैन डिफाइन इट. तो आप जैसे एज पर द डेफिनेशन तुम क्या बोलोगे, ट्विंस इज बेसिकली है when more than a single baby sharing a common interest that are called twins. When more than a common more than a single baby means more than two, or ये भी कह सकते हो more than two baby share a common interest is called twins. अब छोड़ दो इसका, ये मत बताने लगना कि भाई ये सिमेज ट्विंस क्या होता है, या ये मोनोजाइगोटी क्या होता है, या डाइजाइगोटी क्या होता है, ठीक है, छोड़ दो इसको. अब बोर्ड को देखो क्या बोलता है. अगर पूछता है अगेन, हो सकता है तुम इधर सोच रहे हो कि मे दे आस्क अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक और सिमेज ट्विंस, ठीक है. नहीं, हो सकता है यहाँ भी पूछ दे कि इज क्वाड्राप्लेट इज ट्विंस और नॉट. अब मान लो क्वाड्राप्लेट जो लोग जानते हो, प्लेट्स लगा लें TS, क्वाड्राप्लेट्स इज ट्विंस और नॉट. क्वाड्राप्लेट्स में 4 बच्चे एक साथ, तो ये 4 बच्चे एक साथ थोड़े होंगे, अलग अलग टाइम पे, एक ही साथ टाइम पे होंगे ना. सो दैट्स वाई द आंसर इज यस सर, क्वाड्राप्लेट्स इज ट्विंस. ओके, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए एकदम से नीट एंड क्लीन. आप
बोर्ड का चेहरा देख करके सवाल का लेंथ देख करके आंसर का भी लेंथ रखो। लेंथ हमेशा छोटा नहीं रखना चाहिए, बड़ा भी नहीं रखना चाहिए, मेजरेबल लेंथ हो, सो दैट विल वर्क। नेक्स्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। मे दे आस्क यू टू रीड टू यू, बिकॉज ये सब जो टॉपिक है काफ़ी चर्चे में होते हैं। नो वन नो द सिलेबस। इफ द एकेडमिक जो टीचर्स हैं या जो वो उनको ही नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, और वो सिंगल गो थ्रू अगर हुआ भी होगा तो उसे याद नहीं होगा सिलेबस। ये सिर्फ मुझे पता हो सकता है, दोज हु आर टीचिंग जूलॉजी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्वेंट, दे ओनली दैट पीपुल नो। बट ये लोग इंटरव्यू बोर्ड में कहाँ मिलेंगे तुमको? वहाँ तो मिलेगा स्कॉलर, एकेडमिक स्कॉलर मिलेगा, या तो अदर बैकग्राउंड के लोग मिलेगा। अब अदर बैकग्राउंड के लोग को कुछ पता नहीं पूछें क्या, तो जीएस से पूछेगा, और जूलॉजी वाले एकेडमिक है तो वो भी कॉमन टॉपिक पूछेगा। तो वैसे में आपका तो जस्ट इसका आंसर करो, टेल अस समथिंग अबाउट क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? अब क्लोनिंग क्या है तो आप लोग तुम कहना शुरू सर क्लोनिंग इज बहुत सारा बात कर सकते हो आप, पर आंसर इसको मत करो। क्लोनिंग इज नथिंग सर, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन इज कॉल्ड। ओके सर, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन। ओवर करो आंसर को। क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन, इसके आगे कुछ मत कहो। वेट बस ओके द बोर्ड फेस क्या उनका रिस्पॉन्स है? अगर वो पूछता है कि क्लोन, फर्दर पूछता है व्हाट इज क्लोन, आंसर इट। सो क्लोन इज नथिंग इज जेनेटिक रेप्लिका ऑफ देयर ओके पेरेंट्स, या कह सकते कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जो भी कहना हो कहो। लेकिन अगर नहीं सवाल है तो फिर आंसर मत करो। नाउ द नेक्स्ट इज दे मे आस्क व्हाट ह्यूमन हाउ ह्यूमन क्लोन कैन बी मिस यूज्ड, ठीक है ना, या इसको अगर इथिकल या लीगल इस पर कुछ जोड़ करके सवाल पूछ सकता है कि व्हाट आर द इशूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग, या इसका मिसयूज़ क्या हो सकता है। तो फिर मिसयूज़ की जब बात है तो क्लोन हम बना रहे थे तो ह्यूमन क्लोन का मिसयूज ही होगा। मान लो कोई वन कैन यूज इट एज अ बायो वेपन्स, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बायो टेररिज्म को हम कॉज कर सकते हैं, क्लोन आर्मी बना सकते हैं, किसी जो सुंदर लड़की है उसका क्लोन बना करके उसका मिसयूज किया सकता है। ओके, तो इस तरह का क्लोन का मिसयूज हो सकता है। तो ये आप मिसयूज बता सकते हो कि सर क्लोन कैन बी मिसयूज आइदर एज ए प्रोस्टिट्यूशंस और एज ए ह्यूमन बॉम्ब और एज ए क्लोन आर्मी। तो देयर आर सो मेनी मिसयूज ऑफ द क्लोन्स एंड दैट्स व्हाट इज ओके। अगर वो इथिकल कंसर्न पूछता है तब यहाँ पे आपको दूसरा आपका ये बदलना होगा कि बिकॉज द लाइफ ऑफ क्लोन इज स्मॉलर, दैट्स ये एक इथिकल पर्सपेक्टिव है कि हमारा ही क्लोन होगा, उसका लाइफ छोटा है और हम उसे मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। दूसरा सेकंड है कि उसको मैनेजिंग ओके, उसका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, तो देयर कॉस्ट इज काफ़ी ह्यूज है। थर्ड ये कह सकते हो कि दे आर हाईली सिक टू इन्फ्लामेशन, ठीक है। एंड फोर्थ ये भी कह सकते हो कि आवर गवर्नमेंट कैन गिव द क्लोन और लीगल राइट्स। तो ये सारे जो हैं और सिटीजनशिप, ये सारे जो इशूज होता है यहाँ पे, आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। What criteria should one use in categorizing species? This is the question. तो सब अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो, इसका आंसर आप जब करते हो तो आपके पास बेसिक यहाँ पे है ये कि सर थ्रेटेंड स्पीसीज is one which is unable to realize its full biotic potentials and is therefore liable to become extinct. So the inability of realizing full biotic potential is due to depletion of food or habitat destruction or overexploitation or alien species. अब यहाँ पे जैसे आपने लास्ट में यूज़ किया एलियन स्पीसीज, ठीक है, तो मे दे आस्क टू यू अगेन कि व्हाट इज एलियन स्पीसीज, और मे दे आस्क टू यू कि कई सारे स्पीसीज हैं लाइक द व्हाट इज डोमिनेंट स्पीसीज, या व्हाट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, या व्हाट इज एक्जॉटिक स्पीसीज, या व्हाट इज इंडेमिक स्पीसीज, या व्हाट इज इन्वेसिव स्पीसीज। या एलियंस के बाद ये भी हो सकता है उसको याद आए कि एलियंस रूल क्या है या जॉर्डन रूल क्या है। तो आप जब वर्कआउट करना, जब लास्ट में कोई पॉइंट छोड़ते हो आप, वेन एवर यू आर लिविंग सम पॉइंट्स, तो ऑन दैट पॉइंट यू नीड टू वर्क एक्सटेंसिवली कि उसके सर्कमफ्रेंस में क्या क्या पॉइंट्स बन सकता है। जो कि मैंने क्या होता है एलियन स्पीसीज कहते हो, तो एलियन स्पीसीज का मतलब हुआ हो सकता है एलियन रूल से सवाल पूछ दे, या जॉर्डन रूल से सवाल पूछ दे, या बर्गमैन रूल से सवाल पूछ दे, और या अदर उस स्पीसीज में ही रहता है तो हो सकता है वो
ये पूछ दे कि भाई इंडेंजर्ड क्या है, या एक्सोटिक क्या है, या एंडेमिक क्या है, या इन्वेजिव क्या है, या डोमिनेंट स्पीसीज क्या है, तो आपको उस तरह की तैयारी क्वेश्चन को बना करके फ्रेम कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलो अगला स्लाइड हम लोग लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस मेड बाय पैरासाइट इन देयर मॉर्फोफिजियोलॉजी फॉर पैरासिटिक एडेप्टेशन। अब इसका आंसर जो लोग पढ़ रहे हो कि प्लेटी हेलमिंथ, निमेट हेलमिंथ, स्केली हेलमिंथ, तो दे प्रॉपरली नो द आंसर। ठीक है ना। पैरासाइट्स इस सारे के सारे के हैं बेसिकली दे आर द इंडो पैरासाइट्स हैं। इंडो पैरासाइट मीन्स दे लिव इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, अब हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। वट एवर द थ्रू आउट द गट और एलिमेंट्री कैनाल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड। ठीक है, माउथ में सलेवरी हो गया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस हो गया, इंटेस्टाइन में जाते हैं तो बाइल एसिड हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, पैंक्रेटिक जूस हो गया, ये सारे निकलते रहते हैं। एंड ऑल दिस जूसेस मेक द पीएच ऑफ डिफरेंट पार्ट डिफरेंट। पीएच में क्या होता है, अंतर लाते रहता है। और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है जो स्टमक में है। स्टमक का पीएच भी पता होगा आप लोगों को, 2.5 पीएच इसका होता है स्टमक का। अब मान लो इसमें जो इसका जो सिस्ट है हमारे गट में जाता है, तो अगर ये डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता है और उससे निकलने के लिए क्या क्या करता है, तो फर्स्ट उसका बॉडी क्या होता है, उसका बॉडी के ऊपर काइंड ऑफ कवरिंग है। ठीक है, दे डोंट हैव द आइज, ठीक है, दे डोंट हैव द डिजिट्स। ओके, तो ये जो ब्लाइंड अपीयरेंस है, पॉइंटेड अपीयरेंस है, विदाउट डिजिट्स हैं, विदाउट आइज हैं, the body क्या कवर्ड है। so all these things made them okay and allow them to survive in the human gut, and this is the criteria of okay of their parasitic adaptation। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग पढ़े भी होंगे, कई सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे ऐड कर लोगे। और आप कोशिश करना कि ऐसे सवालों में 2-3-4 पॉइंट आप दे करके उनको आंसर को क्लैरिफाई कर दो। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई कोरोना वायरस नेम्ड कोविड-19। चूँकि कोरोना चल रहा है, तो नाउ इन टुडे सिनेरियो सो मे दे आस्क टू यू दैट दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप सबको आना चाहिए कि भाई कोविड-19 क्या है। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लोगे। फ्रॉम हिज फैमिली ओके वायरस द कोविड-19 बिलोंग, तो आप उसको भी देख लोगे एक बार वीडियो से। और थर्ड यहाँ पे व्हाट इज़ भिलवाड़ा मॉडल ऑफ कम्बैटिंग अगेंस्ट कोविड-19, तो इन सब पे मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, 2-3 वीडियो मैंने बनाया हुआ, उस सबको आप देख लोगे इसी चैनल पे आकर के। चलो ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से भी कर सकते हो, उससे कर भी लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ से इसका वैक्सीन क्या है ये सवाल पूछ सकता है आप लोगों से। दूसरा इसका टेस्ट क्या है, एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो PCR है, RT-PCR है, वो टेस्ट हैं। तो उस टेस्ट पे भी मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया, उसको भी आप लोग देख लेना यहाँ पे, तो ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इस पर सवाल बनता ये भिलवाड़ा मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये मॉडल आप लोगों से भी पूछ सकता है कि भाई आप जा रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने, तो वट विल योर आंसर। ठीक है, और कोविड-19 है तो बेसिक बातें होगी। फैमिली, ये चूँकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो जूलॉजी वालों से फैमिली पूछ सकता है, या हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भाई जो मर्स था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सारस था। ठीक है, तो ये सार्स या मर्स, इससे भी आप लोगों को पूछ सकता है कि भाई सार्स क्या है, तो आप कह सकते हो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, वो भी कोरोना वायरस की फैमिली से जो वायरस था उससे हुआ था, और मर्स भी वही था। एंड ऑल आर बेसिकली सो ये एक लास्ट सवाल था कि ये एक अफेक्ट किस ऑर्गन को करता है मेनली, तो इफेक्ट ऑल सार्स हो, मर्स हो, कोविड है, सब कुछ को अफेक्ट करता है, ये लंग्स को। ठीक है, ठीक, तो आप लोग आंसर जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ ऑल दिस 3 और वट एवर द कोरोना वायरस फैमिलीज जो कोरोना है, तो उससे जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी कौन सा था, सबसे लिस्ट फर्टिल कौन था, लिस्ट फर्टिल यही है जो अभी चर्चा में। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अगला स्लाइड लेते हैं। ये क्वेश्चन है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। अगर मान लो कोई लड़की का हो और वहाँ पे कोई फीमेल महिला बैठी हुई है बोर्ड में, तो हो सकता है वो जनरली वो पर्सनल क्वेश्चन को लोग पूछ देता है, या हो सकता है जरूरी नहीं कि फीमेल ही कैंडिडेट से पूछा जाए सवाल, हो सकता है मेल कैंडिडेट से भी सवाल पूछा जाए। तो वैसे में ये बेसिक सवाल होता है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय मेल टू द फीमेल और फीमेल टू द फीमेल। ठीक है, कि वाई आर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस
एंड यू ऑल हैव द आइडिया अबाउट दैट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? अभी जो लोग जान रहे हो तो ठीक है, जो कि भाई इसमें क्या है, मीन्स MC इज़ द साइन ऑफ stoppage of MC is the sign of pregnancy, you all know, but if you don't know the technicality, so तुम आंसर ऐसे कर सकते हो, सर when pregnancy occurs a high level of progesterone and estrogen suppress the gonadotropin. Gonadotropin means FSH, follicle stimulating hormones, and the latter is required for the development of new follicles. So if the new, ठीक है, तो जब FSH सप्रेस हो गया तो न्यू फॉलिकल बनेगा नहीं, जब न्यू फॉलिकल बनेगा नहीं तो क्या होगा, MC, ठीक है, एब्सेंट हो जाएगा। बिकॉज ये जो भी, ठीक है ना, तो आप इतना आंसर करके आप रुक जाओ, आप आगे उसमें ज़रूरी नहीं कि आप आंसर करो, तो ज़्यादा आंसर करने में दिक्कत होगा, और भी सवाल पूछेंगे, और आपका अगर टॉपिक या हार्मोन्स अगर क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक है, वाई डॉक्टर्स रिकमेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग टू द इन्फेंट। तो दिस इज़ द, और आप लोग उसका आंसर जो लोग को आ रहा है, ठीक है, आप उसको भी जानते हो कि जो मदर्स जो मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी, जैसे लाइक द IgG एंटीबॉडी, ये सब होता है। दूसरा है उसको जो इनिशियल जो मिल्क होता है दैट आर कॉल्ड कोलेस्ट्रम, एंड इन द दिस मिल्क बेसिकली गिव्स इम्यूनिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। आप लोग इम्यूनिटी जब इम्यूनिटी की बात आती है तो वहाँ पे होता है इनैट इम्यूनिटी बाई बर्थ, एंड अदर इज द बेसिकली वट एवर द चाइल्ड acquired in their lifetime, so that are the basically the उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट आर कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसी मिलेगा कि, और दूसरा है प्रॉब्लम भी है कि जो चाइल्ड होगा उसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस होगा दैट आर द नॉर्मल होगा ना, वो मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा, उसका जो एब्डोमेंस है वो ज़्यादा फुला नहीं होगा, या बॉडी पार्ट्स का होगा इम्बैलेंस नहीं होगा, वो नॉर्मल बैलेंस होगा, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, and that's why doctors prefer breastfeeding to infant instead of bottle feeding. Next question, and this is the last question of this slide, what is the role of zoology in administration? This is the one of the fundamental question may they ask to you, because if their background is not zoology, definitely they ask these questions. जनरली होता है यही है कि बोर्ड में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनका बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड नहीं तो वो पूछे क्या, अंत में वो ले दे करके यही घिसा पिटा सवाल पूछेगा। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जूलॉजी क्या है, साइंस है, और जूलॉजी में आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, और सोशल ऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे प्राइमेट पढ़ते हो आप लोग वहाँ पे, या इंसेक्ट पढ़ते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या देखते हो, सोशल हायरार्की, सोशल, ठीक है, लाइफस्टाइल, या पेरेंटल केयर, आप फिश में देख रहे हो, आप एम्फीबियंस में देख रहे हो, रेप्टाइल्स में देख रहे हो, थ्रोट मैमल्स देख रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसको आप लोग देखते हो। अभी ये सब आंसर बच्चे कहीं से भी उठा के इसका आंसर कर सकता है, देयर आर सो मेनी आंसर। अब एक जो मैं जो महसूस करता हूँ कि आप लोग आंसर में एक सिंपल तरीके भी कर सकते हो, सो जूलॉजी इज साइंस, एंड साइंस में हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ साइंस, बिकॉज पब्लिक हम जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक को एडमिनिस्टर करने के लिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो बातें कहा कि पब्लिक आर्ट्स है, साइंस है, और वहाँ पे कई सारी चीज़ कहा गया, जैसे मान लो पोस्ट कोड दिया गया है, या कई सारी चीज़ बताया गया, उसमें भी यही बातें होती हैं कि सिस्टमेटिकली हम कैसे यूज करें, ठीक है। और पब्लिक में कई सारी थियरीज हैं, और मान लो उसमें एक थियरीज हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। जैसे एक फावड़ा था, अब फावड़े से मजदूर लोग क्या करता था कि उसको उठाकर पत्थर को उठा करके मान लो डालना है ऊपर, तो फावड़े का लंबाई बड़ा था, तो लोगों ने देखा फावड़े का लंबाई बहुत बड़ा है, मजदूर थक जाता है, तो अगर फावड़े की लंबाई कम कर दें तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में ये स्टोन उठेगा और ज़्यादा फास्ट काम होगा और इफेक्टिव काम होगा। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो साइंटिफिकल मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट का मतलब वो सिस्टमेटिक का मतलब वो साइंस। So being a zoology students, I'm quite familiar with the science. Okay, and that's why whatever the policy given by government to implement and execute it in the among the peoples. So definitely before going to execute or implement it, I will think on all the perspective in systematically manners. And whenever a science discipline students or my students like myself, if they are going to
execute it, definitely my execution is better than anyone else, and that's why this is the role of zoology in admission. Thank you, bye. एंड अब अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप सब लोग कमेंट अपना अपना यूट्यूब का है जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपना कमेंट लिखोगे, एंड कमेंट में चीज़ और लिखना कि आइदर आई विल कंटिन्यू इट और नॉट, एक चीज़ और लिखना, ठीक है। और आप जो भी स्टूडेंट्स होगा आप लोगों को जोलॉजी वाले उनमें शेयर कर देना ताकि किसी को बेनिफिट तो हो। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय।